वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ही तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मिनी थाईलैंड ऑफ इंडिया से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है मिनी थाईलैंड ऑफ इंडिया, जिभी हिमाचल, द सोलो फीमेल ट्रैवलर, एपिसोड 20। I'm hiking to the 360-degree trek point, and this is the place where Ye Jawani Hai Diwani was shot. जिभी एक गांव है लोकेटेड इन तीर्थन वैली, हिमाचल प्रदेश, अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली। अगर आपको पुरानी हिमाचली कॉटेजेस, खूबसूरत पहाड़ और घने जंगल पसंद है तो आपको जिभी काफी पसंद आ जाएगी। Commute to Jibi is not the easiest because it's slightly remote. मैं आई थी via Beer, which took me about 5 hours of travel on road. But अगर आप रोडवे से ट्रैवल करना चाहते हो, the easiest place to board a taxi or a bus is a village called Ott, जो हिमाचल प्रदेश में ही है. The closest railway station for all of you who want to travel by rail is Shimla railway station. And you can also travel via air, which is either through Chandigarh airport or Bhundar airport. Speaking of commute and navigation, यहाँ पे नेटवर्क मिलना आसान नहीं है. Only Jio and Airtel work fine. Vodafone network was dead throughout. Unfortunate for me. The only saving grace here is that homestays here have Wi-Fi, like mine did. So let me introduce you to where I'm staying. I'm staying at this very, very beautiful property. It's called Whispering Pines by the Tree House in Jibi. अगर आपने डिज्नी के मूवीज देखे हो या स्टोरी बुक्स पढ़े हो when you were young, this looks like a house right out of that book or a movie. You know, it just feels like I could start talking to the chirping birds or playing with the butterflies. Serious Disney character vibes here. Whispering Pines actually एक village में located है called Tandi. ये जिभी से थोड़ा ऊपर है and hence you get to see the wide range of mountains lying right in front of you. Price for one night is 5,999 including breakfast and can accommodate up to 4 people. I know it's a little pricey, but those looking for budget options, there are a few hostels located near Jibi. Anyway, लोग वैसे जिभी माउंटेन्स को ताड़ने और रिलैक्स करने आते हैं, but there's a lot more you can actually do. Okay, so let's talk about the things that you can do in Jibi. Now, a lot of trekking. That is a given, क्योंकि अगर आप किसी जगह पर जाना चाहते हो, you want to go from place A to place B, you have to keep in mind कि trekking होने वाला है, because it's a mountainous area. You have to keep climbing up and climbing down at regular intervals. That being said, आपको organized treks भी मिलेंगे, starting from 1-day treks to 7 days or more. Then there are other popular destinations like Jalori Pass, Mini Thailand, Sarosa Lake और बहुत सारे जगह. Today I will be covering Mini Thailand and Jalori Pass. Of course, I'm trying to keep it a little light because I know that these places involve a lot of hiking, so I'm keeping that in mind. Also, try to get back home before 6 p.m. at least in the mountains, so you avoid moving around in the dark. For now, let's go. There are no scooters to rent easily in Jibi, so hiring cabs or public transport is the only way to commute. I hired a cab to get to my first destination of the day, which is Mini Thailand. जी हूँ अपने पहले destination में, which is Mini Thailand. Mini Thailand is actually on road to the Jalori Pass from where I'm staying. This is a very steep place. I'll show you how it looks like once I start the trek down. But yeah, let's go now. मिनी थाईलैंड एक्सोटिक तो काफी साउंड करता है. I mean, Thailand or tropical country in the cold mountains. Am I right? But there's no reasoning behind the name.
according to locals, it's called that because it just sounds exotic. दीदी, मिनी थाईलैंड कहाँ पर है? आगे कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट. अच्छा आगे ही है. ओके, थैंक्स. Mini Thailand essentially is a natural point formed on the path of a river surrounded by the Himalayas. It's called a hidden gem, but I don't think it's hidden anymore. Okay, so I've finally reached Mini Thailand after about 10 minutes of trekking down. So basically what it is are 2 giant rocks that have sort of touched each other and this beautiful water below in between it. It's really stunning to watch. I've seen a lot of Instagram posts of people swimming around. I'll try to get my hands or my entire body into the water, but it's too cold. But come, check it out. Jalori Pass. This is one of the highest passes in the Himalayan ranges. Like you can see, I'm also like, itna fog hai yahan pe. I'm breathing and like there's smoke coming out of my mouth. So this is about 10,000 plus feet above sea level. It's called the isolated road full of adventures. Because passing through the Jalori Pass is extremely risky. A lot of people have fallen down from here. So you have to be very tactical. Always take a local, when you're going to places like these. But now यहाँ से आप बहुत सारी treks कर सकते हो. There's like a full 1-day trek towards 7-day trek. So depending on your needs, you can pick a trek of your wish accordingly. But now I'm going to walk around and see what it looks like. Also यहाँ पे बहुत ठंड है and dress according to the cold, envisioning the cold in mind. Now let's go check it out. The pass is located about 73 kilometers from Kullu. Once you get off the road, there are many trails that one can trek on. I, for instance, went on the 360-degree trek to the mountain top, popularly known as the Ye Jawani Hai Diwani spot. Check this out. ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखी है. That's how I ended my day in Jibhi. वैसे यहाँ पे एक दिन में काफी कुछ कर तो नहीं सकते, but I covered whatever I could. I soaked in the moments and made so many memories. तो ये रहा मेरा सफर जिभी का. Now I'm gonna do a small analysis before we end the video. Cleanliness wise, Jibi is a 10 on 10. I did see plastic bottles and other stuff around, maybe mostly left over by tourists. Accessibility wise, Jibi is a little remote. बहुत चढ़ना पड़ता है and cafes are really far away from each other. Safety wise, it is safe provided you get back home on time. Otherwise, commuting here is a little difficult when it gets dark. Of course, it's more than any other casualty. It's the dark, it's the weather, and it's the animals that I'm afraid of. Will I come back to Jibi? Hell yes. I absolutely love the landscape and the weather. Definitely for a longer time for the next time. Thanks for watching this episode and tuning in on Curly Tales. Until then, this is me, Neha Nanda, signing out. Bye. जी जनाब. एक्सट्रीम ब्यूटी, मतलब एकदम अनटच लग रहा था मुझे. बहुत सारे एरिया, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत. और देख के ही ना बिल्कुल इंसान को ना ऐसा सुकून सा मिल रहा था, नींद से आने लग गई थी. यकीन करें, बस स्पेशली जगह जहाँ पे गेंदे के फूल लगे वो बिल्कुल वो इन्होंने जो एक हट था बना हुआ. अच्छा, हट भी लकड़ी का. अच्छा, इसकी क्या खास बात है, मुझे बताएं फिर मैं बताता हूँ. क्या चीज़? कि एक जगह है अच्छी सी खूबसूरत सी, वहाँ पे यार रह सकते हैं, होटल भी है. लकड़ी का क्यों है? लकड़ी में अच्छी फीलिंग आती है. क्यों आती है? मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो
नेचुरल जगह पर हैं, हाँ तो हट तो नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ बनी हुई होती है ना, जैसे लकड़ी है, आप वहाँ पे लोहे का हो, आपको वो तो नहीं फील नहीं आएगा आपको एक। मैंने और तो लकड़ी का जो है ना, अच्छी फीलिंग बोल दिया। लकड़ी का जो है ना हल्का फुल्का सा, या ईंटों का तो बहुत ही और नहीं आएगा। लगेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको फीलिंग आती है नेचुरल चीज़ों से, जैसे दरख्त मेल है। नहीं है कुछ, इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि अगर वहाँ पे ईंटों का ब्लॉक्स का बना होगा तो वो मेल नहीं दिखेगा हमें, वो कुछ मैच नहीं कितना होगा। unique- अनरिलेटेड आप कहते हैं ना, अनरिलेटेड चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रही है तो ऊपर भी बेड लगा हुआ है। ये जो ये था ना, हम लकड़ी के और भी घर देखे, हमने कश्मीर का विजिट किया, आई मीन वीडियो के थ्रू, तो हमने देखा वहाँ पे भी बहुत सारी मतलब लकड़ी के काम हुए हुए कश्तियाँ पूरी देखी। लेकिन ये इससे हट की, इसलिए मुझे ये बहुत ख़ास लगी। वाकई उन्होंने सीखा कहानियों में, जैसे तस्वुराती बिल्कुल। दुनियाओं में आपको एक बताया जाता है कि ये एक घर था, उसके अंदर कोई रहता था, जैसे कहानी वगैरह में होता है, बिल्कुल देखकर ऐसा लग रहा था कहानियों की कोई तस्वुराती दुनिया हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये अकेली थी, इनका व्लॉग का नाम लिखा हुआ भी था सिंगल ट्रैवल का। सोलो फिल्म। तो एक चीज़ थोड़ी सी कमी लगी, शायद खुद ही कैमरा रख के शूट कर रही थी, तो एक इतनी खूबसूरत जगह को उतना खूबसूरत तरीके से पिक्चराइज नहीं किया गया। मैं ज़्यादा कौन सी जगह? यही वाली जगह को नहीं, कि एक प्रॉपर शॉट्स दिखाए जाते जहाँ पे हैं गेंदे के फूल वगैरह लगे कहीं पर भी। हाँ। वो पूरी टोटल ओवरऑल व्लॉग की बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से, जैसे टीम जाती है ना, कैमरामैन होते हैं प्रोफेशनल, एक एक चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से कैप्चर करते हैं, या बाज़ दफ़ा ड्रोन शॉट्स होते हैं, उससे चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दिख रहा था उससे हमें आइडिया तो हो गया जगह बहुत खूबसूरत बहुत थी, खूबसूरत है। लेकिन एक वैसे ही बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया मैं जाता है, बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाया तो सही है। अब मिसाल के तौर पर ये जो घर बना हुआ था, इस घर का दूर का कोई शॉट नहीं था कि ये घर, बाहर से कैसा लग रहा है, ठीक है ना, हाँ। और उसके बाद प्रॉपर वो किस तरह से खड़ा हुआ है, कितनी, रियर फ्रंट कुछ भी नहीं। ठीक है ना? अच्छा, मैं बताएं, मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉग शॉर्ट था, हो सकता है। इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, 15 मिनट का एटलीस्ट होना चाहिए था, जिसके अंदर ये जगहों को दिखाया तो सही, ऐसा लगता है शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया गया। उसको तफसीली तौर पे, जैसे आप देखते हैं, हम ड्रीम चादर के अक्सर ब्लॉग्स देखते हैं या फिर दूसरे लोगों के ब्लॉग्स देखते हैं, तो उसमें इस तरीके की ब्यूटी में अक्सर वो बोलते कम है और चीज़ों को ज़्यादा दिखाते हैं। इन्होंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी, डिटेल्स वहाँ की हाँ, ज़्यादा दी, ये चीज़ है। गाइड आपको ज़्यादा करा ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, आपको पता हो अगर आप वहाँ जाने वाले हो। लेकिन वो जो जगहें थी उनको बस उन्होंने थोड़ा दिखा दिया, थोड़ी ऐसा लग रहा था मुझे झलकियाँ दिखा दी। अच्छा, कर्ली टाइल्स पर ये वीडियो, इस तरह की वीडियो फर्स्ट टाइम हमने देखी। इनकी वीडियो, हाँ, इनकी वीडियो और इस तरह की वीडियो। इस तरह की वीडियो वैसे तो ये मतलब है कि एक दो इनके होस्ट हैं, वो होती हैं, जगहों को एक्सप्लोर करती हैं, ऐसी वीडियोस होती हैं। हाँ, लेकिन इस टाइप का मतलब उनका अपना एक टेम्पो, उनका अपना एक स्टाइल है। कामिया जानी है, दूसरों को याद करेंगे तो वो तो अलग ही होगा। हाँ, तो इनका लेकिन अपना, जगहों को एक्सप्लोर करते हैं वो लोग। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बता रही थी बैक ऑफ कैमरा कि कोई एक सेलिब्रिटी एक्टर है, वो यहीं की हैं, कंगना के बारे में इस- मुझे पता था कि वो इसी स्टेट से, हिमाचल से। हिमाचल से, और हिमाचल। इसी शहर से हैं। नहीं, मुझे जिबी का नहीं पता, जिबी है ये जगह, हाँ। ये शहर है या स्टेशन है जो भी है, खैर। लेकिन मुझे कंगना का ये पता चला था कि वो हिमाचल प्रदेश से हैं, ये एक स्टेट खूबसूरत से। इलाका, बहुत खूबसूरत है, सब। वो खुद भी माशाल्लाह दिख रहा है आपने, बहुत प्यारी है। यहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, सुर्ख सफ़ेद, जैसे हमारे कश्मीरी ना, वैसे यहाँ के लोग। नहीं, वाकई वो अंदाज़ा हो रहा था माहौल। और किसी से गाइड भी लेनी थी, हाँ, तो वो जो अंदर बैठी थी, आपने फौरन क्या था, मुझे ऐसा लग रहा है कश्मीरी टाइप की जिस कोई तरह से हमारे महिला। यहाँ कश्मीर के लोग होते हैं ना, उस तरह का लुक आ रहा था, पठानों का या पठानों कश्मीर टाइप की का। हाँ, बहुत अच्छा लगा, एक यूनिक चीज़ थी, एक नई जगह देखी, मिनी थाईलैंड के नाम से। मिनी उसका नाम ही, अच्छा, एक तो होता है ना कि मैंने एक जगह देखी और मैं उसका नाम रख लूँ मिनी थाईलैंड, बाकी तो वो मिनी थाईलैंड के नाम से फेमस है। लेकिन लास्ट में जब वो पहुँची, जहाँ पानी था, घना जंगल यार, इतनी ग्रीनरी और साथ पानी, इतनी ग्रीनरी, और यहाँ पे बड़े ही तरह के जानवर, बड़े ही ख़तरनाक चीज़ें भी हो सकती हो हैं, सकती है। 100% हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की जगहों पे ये चीज़ें रहती हैं। अच्छा, पानी वगैरह की जो जगह पे गई थी ना, जहाँ पे वो नीचे की तरफ जाके खड़ी हुई थी, जो आप कह रहे थे कि शायद अब नहाएंगी भी और शायद इंजॉय करेंगी, तो नॉर्मल था, पानी- सोलो ट्रैवलर है, इतना कुछ करके दिखा नहीं सकती थी, नॉर्मली हम वीडियोस में देखते हैं। तो वो जगह मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि शायद पहले कोई वहाँ पे ना आया हो, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था न्यू, बिल्कुल। बिल्कुल अभी अभी जैसे कोई चीज़ आपके सामने दरियाफ्त हुई हो, आपके सामने कोई पहली बार पेश करे, तो आपको कैसा लगता है, वो वाली फीलिंग आ रही थी। और मुझे घर वाले अनटच, बिल्कुल अनटच, और मुझे हट वाले टाइम पे भी ये फीलिंग आ रही थी, बाहर का एरिया देखकर यार फ्लावर्स इतने तरीके से एकदम खुशनुमा लग रहे, नहीं, अच्छा जगह बना एकदम साफ सुथरी हुई, ऐसा लग रहा है पहले कोई आया ही नहीं होगा यार। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। और बहुत ही मतलब एक लास्ट में उन्होंने मैसेज भी दिया कि यहाँ इस तरह की जगहों पर आओ तो बिल्कुल। बॉटल्स वगैरह, कचरा वगैरह ना छोड़ें। तो एक बहुत ज़बरदस्त, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।